Good morning, students. Today we are starting chapter 13, that is development experience of India, China and Pakistan, a comparative study. So, first of all, we'll see that what were the strategies of growth of India, Pakistan and China. When the development started in these three countries, what were the strategies? After independence 1947, India and Pakistan adopted almost a similar strategy of growth. Principal features of this strategy were that it was a mixed economy model of growth. The strategy of growth underlined the significance of both private and public sector. Public sector was assigned the key role of starting the growth process, and private sector was assigned the secondary role of pushing the process of growth. So what does it mean? कि इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री में उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, अपना उनका सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो उस समय दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटजी ग्रोथ की अडॉप्ट की, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को पूरा इम्पॉर्टेंस दिया गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से कम इम्पॉर्टेंस दिया गया. पब्लिक सेक्टर की रोल प्ले कर रहा था डेवलपमेंट में और प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था उसको ग्रोथ प्रोसेस को पुश करने में. So one question arises that why was the public sector assigned the key role? Partition of the country had rendered both the countries into backward positions, and both the economies needed a big push to grow and develop. So both the countries gave more importance to public sector, because public sector only could invest a huge amount on the growth. But China, on the other hand, adopted a more rigorous model of growth. Established as People's Republic of China in 1949, it decided to bring all critical areas of production under government control, and it adopted the model of statism. In this model, government has the full control over resources of production, and people, individuals could not take any decisions. So China adopted statism as a model of growth, in which ownership of all resources vested with the state, and the state was to decide what to produce, how to produce and for whom to produce. So common elements in the strategy of growth adopted by China, India and Pakistan, तीनों में common points कौन से थे तीनों की strategies में? That all the countries relied on public sector rather than private sector, and all the three economies laid stress on inward looking trade strategy, यानी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना और FDI को बिल्कुल भी एनकरेज ना करना, अपने ही कंट्री में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करना और अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर रिलाय करना. तो तीनों इकोनॉमीज़ का ये एक कॉमन पॉइंट्स थे. ओवर टाइम द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ हैज़ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान. व्हाट वर द चेंजेस? दैट द गवर्नमेंट in both the economies are now relying on a model of growth which continues to be mixed economy model, but it is one which assigns greater importance to private sector rather than public sector. तो ये change आया इन दोनों में कि अब इनका more reliance on private sector है rather than public sector, and model of growth is one which assigns greater importance to FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको वो पहले बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब FDI को ये कंट्रीज़ प्रमोट करने लगे और फॉरेन कंपनीज़ ने इन कंट्रीज़ में आकर बहुत इन्वेस्ट किया. सो इट इज़ ओइंग टू चेंज इन स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ दैट ऑल द थ्री इकोनॉमीज़ हैव सक्सीडेड इन अचीविंग अ ब्रेक थ्रू इन देयर ग्रोथ पाथ. तो उन्होंने तीनों ही कंट्रीज़ ने अपने ग्रोथ पाथ में बहुत प्रोग्रेस की है.
we can say that GDP growth has taken a substantial jump in economies of India, Pakistan and China. The structure of growth has recorded a significant transformation and demographic profile is rewritten. Demographic होता है relating population, कि जो population की condition पहले थी just after on the eve of independence थी, उसके बाद तीनों ही countries में population का status quite change हो गया है, drastic changes उसमें आए हैं. So now we'll discuss comparative performance of economies of India, China and Pakistan. So we should know some parameters on which we can compare these three countries. So these parameters are GDP growth, structure of growth, demographic profile and human development. तो इन चार फील्ड्स में इन चार पैरामीटर्स पर हम इन तीनों कंट्रीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट विल सी GDP growth. So first we are discussing growth story of China. The principal points explaining the growth story of China as under that in 2019 GDP in China was estimated to be $14.2 trillion. It achieved the distinction of second largest economy in the world next to US. तो इतनी चाइना ने प्रोग्रेस की थी, ये 2019 का डाटा है कि $14.2 ट्रिलियन इसकी चाइना की जीडीपी थी 2019 में. व्हाट इज ट्रिलियन? 100 मिलियंस मेक अ बिलियन एंड 100 बिलियंस मेक अ ट्रिलियन. सो बिटवीन 1979 to 2017 average annual GDP growth was estimated to be about 9% and China achieved a breakthrough in GDP growth in the early 1980s. So why China has grown too much? What were the factors behind it? That there was a shift from a centrally planned economy to a market economy. China पहले centrally planned economy पर rely करता था. Centrally planned economy क्या थी? Which dependent on market forces, which was governed by the public sector only. और उसके बाद market economy में shift कर दिया. Market economy dependent on market forces, that is demand and supply. And next focus on export related domestic production. और चाइना की इकोनॉमी किस चीज़ पर फोकस कर रही थी कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करो कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो. तो चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर टिकी हुई है. ऑल द वर्ल्ड चाइनीज़ गुड्स आर डोमिनेटिंग. पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं छाए हुए हैं. इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स गिविंग चाइना अ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो लेबर फोर्स उनको चीप रेट पर अवेलेबल हो रही थी, जिसकी वजह से उनको कॉस्ट भी कम पड़ती है, इसी वजह से वो बल्क में प्रोडक्शन कर पाते हैं. और GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन लॉन्च इन 1958. ये कौन सा कंपेन था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा कंपेन था, एक ऐसा अभियान था जिसमें प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर बढ़ाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सभी हाउस होल्ड्स को ये ऑर्डर दिए कि अपने घरों के कोर्ट यार्ड्स में, अपने हर घर में, घर के आंगन में एक फैक्ट्री लगाओ. मतलब प्रोडक्शन को इतना लार्ज स्केल पर एक्सपेंड किया कि ग्रेट लीप, एक बहुत बड़ा उछाल, छलांग लगाई इन्होंने हर गुड्स के प्रोडक्शन में. तो इट इज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड दैट फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द कोर्ट यार्ड्स ऑफ ऑल द हाउस होल्ड्स. एंड क्वांटम जंप इन FDI वॉज अचीव्ड थ्रू द following steps. China established SEZ, Special Economic Zones. These zones offered all basic amenities to the investors. तो चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसमें इन्वेस्टर्स को बहुत फैसिलिटीज़ दी गई, बेसिक अमेनिटीज़ दी गई. तो इसलिए जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके लिए ये एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन बन गया और सभी अपना इन्वेस्ट करना चाहते थे चाइना के अंदर. और 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट
परमिट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फ्री फ्लो ऑफ FDI, और FDI का फ्री फ्लो कर दिया, कोई रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं थे इन द रिटेल सेक्टर. दीज वर द टिपिकल इंड्यूसमेंट पैरामीटर्स फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स. And a jump in GDP growth was achieved not only through FDI but also through domestic investment. तो domestic investment के through GDP growth बहुत ज़्यादा चाइना में हुई. It was a campaign to generate awareness among the people that they can play a significant role in the process of GDP growth by establishing industrial unit even in their courtyards. It was told to you just now. The campaign was so motivating that it almost generated a momentum for economic growth. तो economic growth में एक बहुत बड़ा leap forward उनकी add हुआ, बहुत बड़ा jump आया. Relying basically on external demand, China achieved a record growth in exports, and by 2010 it emerged as the largest exporter in global market, और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा exporter country बन गया. But in recent past, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, GDP growth in China has slowed down. तो GDP growth चाइना की धीरे धीरे कम होती चली गई. कुछ इसके रीज़न हैं. First, slow down in global economies has lowered for the demand for Chinese product. Chinese product की डिमांड धीरे धीरे हर कंट्री में कम होने लगी. Growth of domestic demand in China is slowing down. चाइना में अंदर अपने कंट्री में भी उनके गुड्स की डिमांड कम होने लगी. क्यों कम होने लगी? क्योंकि लोगों की राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव, लोगों ने ज़्यादा सेव करने की तरफ अपनी टेंडेंसी चेंज कर ली और लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो गया, सेव करना उन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया. नेक्स्ट, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, और धीरे धीरे चाइनीज़ इकोनॉमी में करप्शन और क्राइम्स एमर्ज हो गए. चाइनीज़ पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर कंट्रीज़, और क्योंकि उनको अपने कंट्री में बहुत चीप लेबर, चीप वेजेस पर काम उनसे कराया जाता था, तो अब वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में कोशिश करने लगे ताकि उनको ज़्यादा वेज पर काम मिल सके. और चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने अपना किया कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गई. तो इन वजहों से उनका स्लो डाउन स्टार्ट हो गया. लेकिन स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट एट प्रेजेंट, एट व्हाट सिचुएशन चाइना इज़, all the countries are against China and they are against the goods of China. सब ने उनका बायकॉट करने का एकजुट हो गए हैं सभी, क्योंकि जो चाइना ने एट प्रेजेंट कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, उसकी वजह से चाइनीज़ पॉलिसीज़ इतनी गलत थी जिनकी वजह से सभी कंट्री अब एक साथ खड़े हो गए चाइना के अगेंस्ट. तो अब चाइनीज़ इकोनॉमी का और फॉल डाउन होना निश्चित है, सर्टेन है. नेक्स्ट इज़ growth story of India. Growth story of India is explained in terms of following observations. In 2019, GDP of India was estimated to be $2,972 trillion, and this achieved an average annual growth rate of about 6%. And what elements were there for change? That a significant shift towards privatization, selling of government equity to private enterprises, to private entrepreneurs, and a big leap or jump towards liberalization. तो इंडिया ने कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट हाई हुआ? कि एक तो प्राइवेटाइजेशन पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया. जो भी गवर्नमेंट के यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थी, क्योंकि उनमें काम बहुत स्लो होता था, करप्शन बहुत आने लगा था उसके अंदर, तो इसलिए उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. उन सभी यूनिट्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल आउट कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क्स मोर एफिशिएंटली. और लिबरलाइजेशन, जो पहले लिमिट्स थी, कोटास थे, उन सबको लिबरलाइज कर दिया गया. तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसमें क्या था? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. अ बिग पुश टू एक्सपोर्ट प्रमोशन. तो पहले हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन को हमने फॉलो किया, और ग्रेटर रिलायंस ऑन FDI,
और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी हमने रिलाय किया। तो इन सब कारणों की वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी, दैट वेंट वेरी हाई, and deeper integration of domestic economy with the global economies. So these were the factors which caused a high speed of growth in Indian economy. And now we'll tell you growth story of Pakistan. In 2019, GDP of Pakistan was estimated to be 27,405 billion US dollars, and it is quite less than India and China. And Pakistan achieved a breakthrough in GDP growth in the mid-80s. It was as a consequence of economic reforms, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, फोकसिंग ऑन FDI, उन्होंने भी FDI को फोकस किया, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से बहुत इनके मिलते जुलते थे। सो पाकिस्तान में लेकिन जो उनका इकोनॉमिक आउटलुक था वो धीरे धीरे डिसअपॉइंटिंग हो गया। किसकी वजह से? पाकिस्तान हैज़ बिन ग्रिप्ड बाय द वॉर ऑफ टेरर, क्योंकि पाकिस्तान में टेरर इतना ज़्यादा फैलने लगा था, टेररिज्म का सेंटर बन चुका पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान का ग्रोथ रेट धीरे धीरे नीचे आने लगा। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज FDI हैज़ स्टार्टेड श्रिंकिंग, उनकी अपनी इकोनॉमी का भी स्लो डाउन शुरू हो गया, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर द अदर फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली contributing to economic stagnation of economy of Pakistan. So owing to slow GDP growth and consequently the low level of income, Pakistan economy has almost sunk, बिल्कुल डूब रही है उनकी इकोनॉमी लो इनकम लो ग्रोथ के ट्रैप में। उनका इनकम लेवल भी कम हो गया और ग्रोथ लेवल भी कम हो गया। So we can conclude for this that China has outpaced both India and Pakistan, कि चाइना की इकोनॉमी इन दोनों इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रोइंग है, और इंडिया पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इंडिया पीछे है। एंड रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना, क्योंकि चाइना में गवर्नमेंट का रूल है, स्टैटिज्म है, इसलिए उसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से चाइना का ग्रोथ रेट हाई है। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, सेक्टोरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, we know that growth process causes a shift in sectoral share in output and employment. So structure of growth, students, we'll discuss on tomorrow, and revise daily whatever is taught. So that's all for today.